Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to discuss the revision plan for paper number 6, that is Law and Ethics. So in this paper there are two parts, one is law and another one is ethics. So in the exam paper, ethics comes for around 10 to 15 marks, and sometimes in the previous exam pattern it was coming for around 17 or 19 marks, but in the new paper pattern as per this January term, it has come for around 10 to 15 marks. So in the first day we are going to cover the entire portion of ethics. It consists of 10 pages only, and this 10 pages will fetch you around 10 to 15 marks. So this is very important, right? And it will take you maximum 2 hours to complete all these pages. And you can even refer Mohit sir's marathon lectures where he has discussed the ethics part. After that, the same day you have to do what? You have to do Contract Act, right? You have to study Contract Act for 1 hour. You can also refer Mohit sir's marathon lecture for this. And in the first day you have to contribute only 3 hours. In the second day, what you need to do? You have to revise ethics. Maximum 30 minutes is sufficient for the revision of ethics wala part, and it will take you maximum 30 minutes. After that, attend Mohit sir's marathon lectures for 2 hours, and there is also another lecture of Mohit sir on Contract Act, that is Mohit sir's quiz, and this video is about 1.3 hours, right? 1.3 hours. So you can attend these two lectures, and in the second day you have to contribute 4 hours maximum. Day 3, what do you need to do? You need to study Contract Act from Mohit sir's quiz part 2. This quiz is of 45 minutes. Do this and your basics will be completely cleared, right? And after that you have to do bailment, pledge, etc. This is also you can refer Mohit sir's revision classes. It will take you 2 hours because this is very conceptual, and you can expect case studies from this chapters, right? These chapters. And in the day 3 you have to contribute 3 hours max. Coming to the next day, that is day number 4, and you're supposed to study directors. Directors is a part of company law, and in your CMA book, this directors chapter comprises of 15 pages, right? 15 pages and a compulsory question of 15 marks comes every year in your law paper. Comes every year, so you can't leave this chapter. This is directors wala chapter. It will take you 2.5 hours to study directors very easily. And you need to remember वहाँ पर छोटे छोटे dates given हैं, छोटे छोटे percentages, छोटे छोटे numbers, ये सब वहाँ पर दिया है जो कि आपको याद रखना है. और qualifications, disqualifications, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर given है. Next you have to do MCQ for half an hour. So in day 4 you have to contribute 3 or maximum 3.5 hours. Coming to day 5, what do you need to do? Because directors is a very big chapter and there are so many things to remember. So what do you need to do? You need to revise directors the very next day. It will take you around 1 hour, and after that watch Mohit sir's marathon on SOGA. What is SOGA? Sales of Goods Act 1930. So it will take you around 2.5 hours. So on day 5 you have to contribute maximum 3.5 hours. Coming to day 6, on day 6, right? Day 6 में आपको क्या करना है? You need to revise SOGA. It will take you half an hour or max to max 45 minutes. And the very same day, go for Negotiable Instruments Act. Negotiable Instrument Act से हर साल 8 to 9 और you can say 8 to 10 marks का question आता है. ये एक श्योर वाला चैप्टर है. इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, सो यू कांट अफोर्ड टू लीव दिस चैप्टर. सो जस्ट वॉच अर्जुन छाबरा सर्स मैराथन लेक्चर्स on Negotiable Instrument Act, and it is of 3 hours, and it will be your concept on this chapter will be completely cleared. Again on day 7 go for Partnership Act. ठीक है, Partnership Act आप देख लो.
यहाँ पर आप किस किस के लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, अर्जुन छाबड़ा सर, मोहित अग्रवाल सर एंड सिद्धार्थ अग्रवाल सर, इन सब के लेक्चर्स आप देख सकते हो. इट विल टेक यू 3 hours मैक्सिमम टू कंप्लीट दिस, टू कंप्लीट द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. On day 8, what do you need to do? Because you have consumed so many chapters, so many laws and provisions, so you need to brush up everything that you have consumed. So on day 8 you have to revise ethics, क्योंकि ethics को revise किए बहुत दिन हो गया होगा. So it will take you half an hour. Then you have to revise Contract and SOGA and Negotiable Instruments Act. रिवाइज कैसे करना है? सिंपली आपको बुक लेना है या फिर अपना नोट्स लेना है जहाँ से आपने पहली बार पढ़ा था, एंड उसको जस्ट आप जस्ट टर्न पेजेस एंड ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव रेड 2 to 3 days ago. ठीक है, और इट विल टेक यू 2 hours. आफ्टर दैट उसी सेम डे में ही आपको पढ़ना है PFRDA. PFRDA आपका जो लास्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल लॉ में, ये एक छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक 3 to 4 pages का है, और मोहित सर का एक स्पेसिफिक वीडियो है ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इट विल टेक यू मैक्सिमम 1 hour टू रिवाइज दिस चैप्टर. आफ्टर दैट कमिंग टू डे 9 में आपको पढ़ना है, आपको स्टार्ट करना है इंडस्ट्रियल लॉ. उसमें क्या क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो, और ये जो एक्ट है ये आपको पढ़ने के लिए 2 hours लगेगा. इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं, कौन से दिन के लिए कौन से प्रोविजन के लिए कितने वर्कर्स होने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और सेम डे आपको पढ़ना है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. इट विल टेक यू 1.5 hours to 2 hours. तो डे 9 में भी आपको कंट्रीब्यूट करना है 3.5 hours to 4 hours. 3.5 से 4 घंटे में आपका हो जाएगा. ऑन डे 10 यू आर गोइंग फॉर पोगा. What is POGA? Payment of Gratuity Act, and it will take you 2 hours. I think Mohit sir also has a separate dedicated lecture for this particular chapter, so you can refer that. And the very same day you can also study ESI Act, right? ESI Act मोहित सर के क्लासेस अवेलेबल हैं, बट उसमें सर ने CMA इंटर से रिलेटेड जो भी है सब कुछ कवर नहीं किया है. सो यूट्यूब में आप खुद ढूंढ लेना क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन ESI पर वीडियो बना रखे हैं. ठीक है, एंड इट विल टेक यू 1.5 hours अप्रॉक्स. ठीक है, सो ऑन डे 10 ऑल्सो यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट 3.5 hours. कमिंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज डे 11. दिस डे यू हैव टू स्टडी EPF एंड MP एक्ट. जो प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट है आपका, वो आपको पढ़ना है, 2 घंटा लगेगा. एंड द सेम डे आपको पोबा भी पढ़ना है. व्हाट इज दिस? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, सो आपको 2 hours लगेगा इसको रिवाइज करने में. एंड लॉ को जब आप रिवाइज करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, जो कि मैंने प्रॉब्लम फेस किया था. आप जितना आप आगे पढ़ोगे ना उतना ही आप भूलते जाओगे. सो इसीलिए इट वुड बी वेरी नाइस अगर आप एक रफ पेपर या रफ कॉपी पकड़ कर बैठें, और जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे. और ये खत्म हो गया डे 11. कमिंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज डे 12. डे 12 में आपको पढ़ना है मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट आपको पढ़ना है. इट विल टेक यू 2 hours. फिर आपको पढ़ना है LLP एक्ट. LLP एक्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे कभी कभी क्वेश्चन आता है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है तो ज़्यादा मार्क्स का आता है, अराउंड 8 to 10 marks का आ जाता है जब भी आता है. सो इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं हम. सो इट विल टेक यू 1 hour अप्रॉक्स फर्स्ट डे पढ़ने के लिए, क्योंकि LLP एक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको एक ही दिन नहीं रखा है, अदरवाइज इट विल बी वेरी मोनोटनस. सो डे 12 में भी आपको कंट्रीब्यूट करना है मैक्स टू मैक्स 3 hours. एंड ऑन डे 13 यू आर गोइंग टू रिवाइज LLP एक्ट, जो आपने कल कंप्लीट नहीं किया था, जो बाकी का बचा है. इट विल टेक यू 2.5 hours. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टडी कंपनीज एक्ट. सो बेसिकली लॉ में क्या है ना, आपका जो कंपनीज एक्ट है, मैं CMA इंटर के सिलेबस की बात कर रही हूँ. कंपनीज एक्ट ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. 2 हिस्सों में कैसे डिवाइडेड है? एक तो है आपका जो प्रॉपर कंपनीज एक्ट, आपका MGT 7 जो है आपका मैनेजमेंट वाला है, वहाँ तक का है, और दूसरा है आपका डायरेक्टर्स. तो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है वो कैसे आता है, यहाँ से आपका आता है अराउंड 20 marks एंड यहाँ से आपका आता है अराउंड 15 marks.
अगर आप रेशियो देखोगे दोनों का, सो पूरे कंपनीज एक्ट का जितना भी आपके सिलेबस में है उसमें 80% यहाँ पर है और बाकी का 20% यहाँ पर है. सो इट इज़ बेटर कि आप ये 20% पर फोकस करो और 15 मार्क्स को ग्रैब करो rather than going to study this entire 80% वाला stuff and for only 20 marks. ठीक है. So it is my opinion, of course. You can, if you want, you can study the entire act. जो भी आपके बुक में जो भी आपके सिलेबस में है सब कुछ आप पढ़ सकते हो, लेकिन it's up to you, right? So कंपनीज एक्ट अगर आपको पढ़ना है सो उसके लिए है डे 14 एंड डे 15. अगर आपको कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना है तो आपको उसके MCQs को पूरी तरह से करना है. ठीक है. आपके पास जितने भी MCQs हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट ने MCQ बैंक इशू किया है वो आप ले सकते हैं. संकेत पंडित सर के भी जो MCQs है वो आप परचेज कर सकते हैं. कहीं से भी आपको अगर कंपनीज एक्ट के MCQs मिल रहे हैं जो बुक के हर एक टॉपिक के एंड में दिया है वो सब आप कर सकते हैं. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये यहाँ से जो आता है उसके लिए यहाँ पर आई थिंक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंड 15 मार्क्स अराउंड का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है. सो ये तो हमें पूरा ही ग्रैब करना है. उसके लिए हमें MCQ एकदम थॉरली पढ़ना है. ठीक है. सो लेकिन अगर आप लोगों को मन है कंपनीज एक्ट पूरी तरह से पढ़ने के लिए तो आप और 2 दिन लेकर इसको 3-3 घंटे पढ़कर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. और MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लॉ में आपके लिए. और उसके साथ ही साथ क्योंकि अभी जो नया पेपर पैटर्न है उसमें हो सकता है केस स्टडी ज़्यादा आए, तो इसीलिए आपको कहीं से भी अगर केस स्टडी मिल रहा है तो जस्ट गो एंड ट्राई टू सॉल्व देम. उसके लिए आपको प्रोविजंस एकदम थॉरली याद रहना ज़रूरी है. तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है. अब मैं आपको रफली थोड़ा बता देती हूँ कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैं यहाँ पर पिंक पेन से यहाँ पर मार्क करने वाली हूँ. तो उन सारे चैप्टर्स को आपको एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है. पहला है एथिक्स. एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट प्लेज ये भी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है. सोगा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब पहले ही रखा है. और सोगा के बाद नेगोशिएबल वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और PFRDA भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी लास्ट 2 टर्म से ही ये आया है सिलेबस में. तो इससे ऑलमोस्ट दोनों ही टर्म्स में क्वेश्चंस आए हैं. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट. यस, फैक्ट्रीज एक्ट से एक जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले आता था अभी के न्यू पैटर्न में भी शायद आया ही होगा. फैक्ट्रीज एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है. फिर यहाँ पर पोगा इम्पॉर्टेंट है, ग्रेचुइटी. फिर ये बोनस एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है. और उसके साथ क्या इम्पॉर्टेंट है? कंपनीज एक्ट जो है इसके MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके MCQs आपको एकदम थॉरली पढ़ने हैं. ठीक है. और अगर हो सकता है तो आप LLP एक्ट भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. अदरवाइज जो मैंने टिक किया है वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है. राइट. सो ये जो प्लान मैंने बनाया है रिवीजन प्लान लॉ का, ये इट विल टेक यू 15 डेज. अगर आप सारे पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, अगर आप कंपनीज एक्ट छोड़ रहे हो तो इट विल टेक यू 13 डेज. ठीक है. एंड अप्रॉक्सीमेटली ये आपको अगर आप ये दोनों पढ़ रहे हो तो उसको मिलाकर आपको ये लगेगा कितना, 51 to 53 आवर्स. ठीक है. 51 to 53 आवर्स में आपका जो लॉ है पेपर नंबर 6 उसका पूरा एक थॉरली रिविजन हो जाएगा. आई होप आप लोगों को मेरा ये जो रिवीजन प्लान्स है ये सब अच्छे लग रहे हैं. और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मैंने जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड किया, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल द विटी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा है तो. और मेरे चैनल को प्लीज़ अपने CA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट.